Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class, student. Today date is 27 January 2021 and I am teaching you chapter number 23 and name of the chapter is the land of India. Name of the chapter is the land of India. So student, we have, let's do recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video I explained you the physical division, that is the island. The physical division which I explained you in the previous video is the island. Okay, so in Bay of Bengal we have Andaman Nicobar Island and this is on the east direction, and west direction we have Arabian Sea, and which island is in Arabian Sea? That is Lakshadweep. Is it clear? That is Lakshadweep island. So student, let's start with the book exercises of the chapter. Question number A. Question number A. Tick the correct answer. Tick the correct answer. Question number 1. Tick the correct answer. Question number 1. Another name given to the Greater Himalayas. Is Himadri, Shivalik, another name given to Greater Himalayas is first option Himadri, second Shivalik, C is the Himachal, and D Kanchenjunga. So another name given to the Greater Himalayas. So student, in the mountain range, that is in Himalayas range,
In Himalaya range, I explained you, there are 3 parallel ranges of Himalayas: Himadri, or you can say Greater Himalayas. Then other is the middle, or you can say Himachal, and the next is the Shivalik, or you can say outer Himalayas also. So the other name which is given to the, another name given to the Greater Himalayas is Himadri. ठीक है, Himadri. Why we say this as a Himadri? Because these are the world highest range. Himalaya range is the world highest range. Out of 10, the 9 highest mountain peaks you will find in these Himalayas range. So this is the world highest range, that is their Himalayas range. And why we say it as a Himadri? Reason is that the whole year the mountains are covered with the snow. That is the reason we also say it as Himadri. And the average height of the mountain in this region, that is 6000 meter. Average height कितनी दी है? 6000 meter in this region of the mountains. So another name given to the Greater Himalayas is, yes, this is the right answer, Himadri. और ये जो कंचनजंगा है ना बेटा, इंडिया का जो इंडिया में जो हिमालयन जो रेंज है इंडिया में, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, क्योंकि सबसे हाईएस्ट तो माउंट एवरेस्ट है, दैट इज़ इन नेपाल. वो कहाँ है? नेपाल में. लेकिन अगर हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो कंचनजंगा है. ठीक है, इंडिया की. Next question, question number 2. Mount Everest. Mount Everest. Mount Everest is the world's highest dash. Option number A, plateau. Option number B, hill. Option number C, plain. Option number D, mountain peak. Mountain peak. So it is asked student, Mount Everest is the world highest dash plateau. Plateau तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट हिमालयन रेंज है, इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं. ठीक है, तो प्लेट्यूज क्या होता है? हाँ, ये प्लेन से तो ऊपर होता है, लेकिन ऊपर से क्या होता है? फ्लैट होता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट ए राइट आंसर. हिल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिल्स भी माउंटेन्स की तरह, जैसे माउंटेन्स की बहुत ऊंची चोटियां होती हैं वैसे हिल्स की भी होती हैं बेटा. बट हिल्स क्या है? हिल्स स्मॉल इन साइज होता है. हिल का साइज बहुत स्मॉल होता है, माउंटेन्स की तरह नहीं इतना ज़्यादा साइज होता है, तो हिल्स हो ही नहीं सकता. प्लेन्स तो नॉर्दर्न प्लेन्स है, प्लेन हो नहीं सकता. सो ऑप्शन नंबर डी,
दैट इज माउंटेन पीक। जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची माउंटेन पीक का नाम है। और ये माउंट एवरेस्ट बेटा कहाँ है? ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में। इट इज इन द नेबरिंग कंट्री एंड द नेम ऑफ द नेबरिंग कंट्री इज नेपाल। सो आंसर इज माउंटेन पीक। थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच माउंटेन रेंज has protected which mountain range has protected India from foraging invasions? What does this mean? It means that we have to tell of the mountain range. We have to tell the name of the mountain range which protect us from the foreign invasions. मतलब दूसरे कंट्री के अटैक से भी हमारी कंट्री को बचाने का काम करता है। ठीक है, जिससे कि कोई दूसरी कंट्री हमारी कंट्री पे अटैक ना कर सके। ठीक है, जिससे कि दूसरी कंट्री हमारी कंट्री पे क्या ना कर सके बेटा? अटैक ना कर सके। ठीक है, तो वी हैव टू टेल द नेम ऑफ द रेंज। उस रेंज का क्या बनाना है? बताना है बेटा, हमको नेम बताना है। सो फर्स्ट इज द हिमालयास। Second, the Himalayas. Mizo Hills, C है नया हिल्स, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो उस माउंटेन रेंज का नाम है बेटा हिमालयास। दिस इज द नेम ऑफ दैट माउंटेन रेंज। ये तो हिल्स हैं, हिल्स तो हो ही नहीं सकती, हिल्स की हाइट बहुत कम होती है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट क्या है? हिमालयास का ही पार्ट है। जो हिमालयास रेंज है उसी का ही पार्ट है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालयास रेंज में ही आता है। ठीक है, बस ये है कि इट इज इन नेबर कंट्री दैट इज नेपाल, क्योंकि हिमालयास के कुछ पार्ट क्या है? नेपाल में भी है। तो ये किस नेबर कंट्री में है? दैट इज द नेपाल में है।
Question number 4. The desert region of India is also called the desert region of India The desert region of India is also called the Thar Desert. The desert region of India is also called the Thar Desert. Option A, the B, the Great Indian Desert. C, Peninsula Desert. Peninsula Desert. फिर है येलो डेजर्ट. So the desert region of India is also called the Thar Desert, the Great Indian Desert, ओके, और पेनिनसुला डेजर्ट है और येलो डेजर्ट. तो राइट आंसर क्या है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. This is also called the Great Indian Desert. Next, question number 5. Number 5. This forms the largest alluvial plain. This forms the largest alluvial plain. This form the largest alluvial plain. First option, northern mountains. First option is northern mountains. Option number B, desert. Option number C, coastal area.
D, northern plains. And option number E, plateau. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, सी ऑन द बोर्ड, दिस फॉर्म द लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन. सो एलुवियल प्लेन्स जितने भी बने हैं बेटा, एलुवियल प्लेन ये किसकी वजह से बने हैं? ड्यू टू द रिवर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स. ये उन रिवर्स बने हैं बेटा जो माउंटेन से होते हुए फ्लो करते हुए इन प्लेन्स एरियाज में आ रही हैं. So when they are coming from the mountain, at that time they carry lot of rock particles and silt soil, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? So student, तो जो माउंटेन सॉइल्स होके आ रही है जिसको सिल्ट सॉइल बोलते हैं. सो दीज माउंटेन सॉइल इज ब्रिंग बाय द रिवर्स, माउंटेन रिवर्स. और ये कहाँ पे सेटल कर दे रही हैं? ये इसको सेटल कर दे रही हैं प्लेन्स. इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स की जो सॉइल है बहुत ही फर्टाइल है. एंड दिस सॉइल इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स. सो नॉर्दर्न, दिस फॉर्म द लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन. तो सबसे लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन्स कहाँ है? नॉर्दर्न माउंटेन्स. माउंटेन्स एरिया में तो हो ही नहीं सकते. डेजर्ट एरिया में जहाँ रेन फॉल ही नहीं होती, ऑलरेडी सॉइल ड्राई है, तो ऐसे एरिया में तो एलुवियल सॉइल हो ही नहीं सकती. ठीक है बेटा. फिर नेक्स्ट है कोस्टल एरिया. तो कोस्टल एरिया में तो क्या है, यहाँ पे जो लैंड से जो टच कर रहा है वो तुम्हारा सी वाटर है. तो रिवर वाटर तो यहाँ है ही नहीं. जो लैंड से टच कर रहा है वो आपका कौन सा वाटर है? सी वाटर है. तो ये रिवर वाटर तो लेके आ रही है ना इसको, एलुवियल सॉइल रिवर वाटर से आ रही है, ना कि सी वाटर से. फिर नॉर्दर्न प्लेन्स और प्लेट्यू. प्लेट्यूज में भी कोई माउंटेन्स रिवर नहीं है. ठीक है, वहाँ की मैक्सिमम रिवर्स किस पे डिपेंड है? मॉनसून रेनफॉल पे. तो ये भी नहीं हो सकता. सो राइट आंसर इज नॉर्दर्न प्लेन्स. सो नॉर्दर्न प्लेन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन है मैच द कॉलम. क्वेश्चन नंबर बी, एट द कॉलम. मैच द कॉलम. फर्स्ट ऑप्शन माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट. सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन्स. थर्ड पेंसुला. फोर्थ लिटिल रेनफॉल. फिफ्थ इज कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. Fifth is the coastal plains of India. On both sides of the
on both side of the southern plateau. On both side of the southern plateau. Second is southern, THER, and southern part of India. Second is the southern part of India. Then next, desert. Desert हो गया. Then good for growing, crops. Next is in Nepal. Is in Nepal. ठीक है. सी माउंट एवरेस्ट क्या है बेटा? माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल एंड इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक. ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है. इज इट क्लियर? एंड इट इज इन नेपाल. सो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट वन. राइट ऑप्शन इज इन नेपाल. ओके. नाउ सी नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स आर आल्सो नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया. सो नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी गुड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स. क्रॉप्स के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स. सो राइट ऑप्शन होगा नॉर्दर्न प्लेन्स गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है पेनिनसुला. ये कहाँ है? साउदर्न पार्ट में, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन. तो पेनिनसुला क्या होगा बेटा आपका? साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. पेनिनसुला आपका होगा बेटा साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. फिर है नेक्स्ट इज लिटिल रेनफॉल. सो लिटिल रेनफॉल, वेयर वी हैव लिटिल रेनफॉल, इट इज इन द डेजर्ट रीजन. क्योंकि वहाँ का वेदर क्या होगा? बहुत हॉट होगा. वहाँ का वेदर हॉट होता है. इससे सॉइल ड्राई और क्रम्बल्स हो जाती है, मतलब टूटने लगती है, सॉइल के टुकड़े होने लगते हैं. इसीलिए तो वो सैंड फॉर्म में चेंज हो गया. सो लिटिल रेनफॉल कहाँ पे होगी बेटा? डेजर्ट रीजन में. ठीक है. डेजर्ट रीजन में रेनफॉल क्या होगी बेटा? लेस होती है. ठीक है. अब देखो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. जो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया है, दीज आर ऑन बोथ द साइड. ईस्ट की तरफ जो है दैट इज जहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, तो उनको क्या कहते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ठीक है, क्योंकि वो ईस्ट की ओर है, उन्हें क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. और जो इधर वेस्ट की ओर है अरेबियन सी की तरफ, इनको हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सो प्लेन्स आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू. क्योंकि मैंने बताया साउदर्न प्लेट्यू 3 साइड से घिरा हुआ है पानी से, ईस्ट से भी, वेस्ट से भी और साउथ साइड से भी. सो जो ईस्ट की तरफ होंगे उन्हें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे, और जो वेस्ट की ओर होंगे उनको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे. सो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, राइट ऑप्शन इज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू. सो स्टूडेंट, थैंक यू.